تو قلب جواد لطف یزید ہے، تو قلب جواد لطف یزید ہے، تو قلب جواد لطف یزید ہے، تو قلب جواد لطف یزید ہے۔ زرانی فوج بنی ہوئی ہے، یہ یزید کی اولادیں ہیں۔ زرانی فوج بنی ہوئی ہے، یہ یزید کی اولادیں ہیں۔ تو قلب جواد لطف یزید ہے۔ آداب، میں ہوں صفدر رضوی، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اب دیکھیں ایک اہم خبر۔ عباس باغ کی کربلا میں حملہ کی افواہ اڑا کر جو جلسہ درگاہ حضرت عباس میں کیا گیا وہ بھی فلاپ رہا۔ اس جلسے میں کم سے کم 10,000 لوگوں کے آنے کی امید تھی، لیکن وہاں 200 لوگ بھی نہیں آئے۔ اس سے صاف ہو گیا ہے کہ لوگوں نے مولانا جواد، مولانا رضا حسین اور انجمنوں کے ٹھیکیدار مانے جانے والے میثم اپرادھی کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ درگاہ میں بنا بلائے 500 لوگ آ جاتے ہیں، پر ان لوگوں کی بدتمیزی اور بد تہذیبی کی وجہ سے ان سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ جانکاروں کے مطابق مولانا قلب جواد اس لیے سکریہ ہوئے ہیں کیونکہ اب وہ نئے شیعہ وقف بورڈ میں میثم اپرادھی کو چیئرمین بنوانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے شاشن کو پتر بھی لکھا ہے۔ ہم اس کی تفصیل پیش کریں گے اور ان کا سفارشی پتر اسکرین پر دکھا رہے ہیں۔ مولانا جواد اس سے پہلے سورس اور سفارش لگا کر شیعہ وقف بورڈ میں وسیم تیاگی اور علی زیدی کو چیئرمین بنوا چکے ہیں۔ حالانکہ میثم اپرادھی کو چیئرمین بنوانے کا زبردست ویرودھ ہوگا، لیکن مولانا جواد نے میثم اپرادھی کو سمجھا دیا ہے کہ وہ پیسہ خرچ کرنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرے، وہ اسے چیئرمین بنوا کر دم لیں گے۔ ہم اس ویڈیو میں چرچا کریں گے کہ اس جلسہ میں کس کس طرح کی دھمکیاں دی گئیں اور کس کس نے دھمکیاں دیں۔ ان دھمکیوں کی جتنی نندا کی جائے کم ہے۔ اس جلسہ کی سب سے گندی بات یہ تھی کہ مولوی، مولانا اور ذاکروں نے حقیقت کو جانے بنا ساموہک جھوٹ بولا۔ یہ جھوٹ ایسا تھا جیسے کہہ دیا جائے کہ کوا کان لے گیا، اور سب یہی راگ الاپنے لگے کہ کوا کان لے گیا۔ کسی نے اپنا کان پکڑ کر یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ ان کا کان موجود ہے یا نہیں۔ قرآن میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن سب نے بنا پروف اور بنا تحقیق کے یہ دہرایا کہ عباس باغ کی کربلا میں مولانا جواد پر حملہ کیا گیا۔ اس حملے کی اب تک کوئی ویڈیو سامنے نہیں آئی ہے، جبکہ مولانا جواد کے ساتھ چینل والے بھی موجود تھے اور موبائل والے بھی۔ مولانا ظہیر افتخاری کے مطابق انہوں نے مولانا جواد کے ساتھ رہے یوٹیوبر جمال مرزا سے پوچھا کہ حملہ ہوا تھا یا جھوٹ ہے، تو انہوں نے مسکرا کر بتایا کہ حملے کی بات صحیح نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اس جلسہ میں درگاہ کے متولی میثم اپرادھی نے اہم بھومکا نبھائی۔ مولانا جواد کا طوطا بن کر کافی پیسہ خرچ کیا، لیکن بھیڑ جٹا پانے میں ناکام رہے۔ میثم اپرادھی اس لیے بھی جی جان سے محنت کر رہے تھے کیونکہ انہیں مولانا جواد نے نئے بورڈ میں چیئرمین بنوانے کا وعدہ کیا ہے، اور اسی لالچ میں میثم اپرادھی مولانا جواد کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ اسی لیے میثم اپرادھی نے جلسہ میں بدتمیزی بھی کی اور متولیوں کو
अपना मातहत या नौकर समझते हुए धमकी दी। मीसम अपराधी ने औकात से बाहर जाते हुए न सिर्फ आपत्तिजनक बातें की बल्कि जमकर मौलाना जवाद की चमचागिरी और चापलूसी की। सुने। इस जलसे में एक बात बहुत जोरों शोर से उठी है और कई आलिमुद्दीन ने इस बात को उठाया कि वो मुतवल्ली कहाँ हैं जो अपने अपने वक़्फ़ में बने हुए हैं। लखनऊ के अंदर 400 औकाफ हैं, तो यहाँ पर तो 400 मुतवल्ली नजर नहीं आ रहे। एक ही दो मुतवल्ली यहाँ पर नजर आ रहे हैं। एक तो आप मिंबर के साथ साथ मुतवल्ली भी हैं, शबाहत हुसैन साहब मौजूद हैं, या तो मैं खुद यहाँ पर जलसा हो रहा है उसका मुतवल्ली, बाकी तो नहीं नजर आ रहे हैं। उनको ये बताना होगा जो पद पर तुम बैठे हो ये पद इतनी आसानी से हासिल नहीं हुआ है। इस पद के लिए ढेरों नौजवानों ने जेलों में अपने दिन गुजारे हैं। इस पद के लिए हमारा एक आदमी शहीद हो चुका। इस पद के लिए हमारे आलिम दीन ने सड़कों पर लाठियां खाई हैं। इस पद के लिए ढेर हमारे नौजवान अस्पतालों में रहे हैं। हमारे क्या कि ख्वातीन अस्पतालों में रात भर जब धरने पर भूख हड़ताल पर बैठी थी तो वो एडमिट हो गई थी। उनको ये बताना होगा, इतनी आसानी से उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। अगले जलसे में अगर मुतवल्ली नजर नहीं आए तो फिर उनके खिलाफ भी मोर्चा खोलने में वक्त नहीं लगाया जाएगा। सीधी बात, अगर मैं नहीं नजर आऊं तो आप मेरे खिलाफ भी मोर्चा खोल दीजिएगा। बिल्कुल खुली भी छूट है। और खुद ना आए, कम से कम अपने साथ 1000 500 लोग लेकर आए। भाई तब आप इतने ही अच्छे और इतने ही असरदार हैं, तभी तो आपको मुतवल्ली बनाया गया है। तो अपनी असरदारी दिखाइए और जलसे में आइए और शाना बशाना जनाब के साथ हर तहरीक में रहिए, वरना अपना पद छोड़ दीजिए। सीधी बात, क्योंकि सबसे ज्यादा इस बात पर आज जोर दिया गया है। लिहाजा अंजुमन हाय मातमी की ये डिमांड है, ये मांग है कि जो मुतवल्ली अभी तक नहीं आए हैं जलसों में, अगले जलसे में अब्बास बाग में वो रहना चाहिए, वरना उनके खिलाफ भी भरपूर मोर्चा खोल दिया जाएगा। जी हाँ, सुना आपने मीसम अपराधी को। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि अगर उनकी बात सभी मुतवल्लियों पर लागू होती है तो मौलाना जवाद 6 जगह से ज़्यादा के मुतवल्ली वो प्रशासक हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा भीड़ यानी 6000 लोग अकेले उन्हें लाना चाहिए, जबकि आज की तारीख में मौलाना जवाद 6 आदमी भी नहीं ला सकते। इसी तरह मौलाना रजा हुसैन ने मौलाना कल्बे जवाद की सैकड़ों लोगों के सामने धज्जियां उड़ा कर रख दी। उन्होंने जो कुछ कहा उससे यही मतलब निकल रहा था कि मौलाना जवाद की बात न तो प्रशासन सुन रहा है न ही पुलिस और सरकार। इसीलिए बड़े इमामबाड़े में गलत काम हो रहा है। सभी मौलाना जवाद की बात को घोड़े के पाद की तरह समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने समझ लिया है कि मौलाना जवाद के समर्थक मुर्दा हैं, न तो कौम उनके साथ है न उलमा, इसीलिए ज़्यादती हो रही है। आगे उन्होंने जो कुछ कहा उसे कौम की गद्दारी के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे अपने दुश्मनों को रास्ता दिखा रहे हैं कि वे कौम के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। सुने मौलाना रजा हुसैन की बेवकूफ़ी वाली बातें उनकी ज़बानी। आप अब ये इंतजार कर रहे हैं कि बड़े इमाम बाड़े के अंदर किसी जगह के ऊपर रेप हो तब खड़े हो गए, तब जिना की शिकायत आए कि बड़े इमाम बाड़े के अंदर ये वाकया हो गया,
कि वहां के अंदर तो जिना हो गई, तब आप खड़े होंगे, तब आप करिए अरे बहुत बुरा हो गया ये तो, इसके लिए तो हमें खड़ा होना चाहिए था। अरे जब ये आपके सामने वहां रीलें बन रही हैं, वहां फिल्म बन रही है, वहां पर लड़कियां नाच रही हैं इमाम बाड़े की छत के ऊपर, अब भी अगर आप बेहोशी के आलम में हैं और अब भी कह रहे हम नहीं खड़े होंगे, तो इमाम जमाना को क्या जवाब दीजिएगा? अनकरीब ऐसा वक्त आएगा और सिर्फ उसके अंदर हुकूमत ये बहाना ढूंढेगी, जैसे ढूंढा जा रहा है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है। तो याद रखिएगा, कौम ना खड़ी हुई तो बड़े इमाम बाड़े के सामने शराब टेका खोला जाएगा और कहा जाएगा ये पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, पब्लिक इंटरेस्ट नहीं पीना चाहती है वहां के ऊपर, आप क्या पाबंदी लगा सकते? कितने शर्म की बात है। क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि शराब ठेका वहां पर खुले? आप इंतजार कर रहे हैं कि वहां बड़े इमाम बाड़े के अंदर जब जिना के केसेस आने लगेंगे तब हम घर से निकलेंगे? क्या ये गलत हो रहा है? उलमा और लोगों का समर्थन ना मिलने से बिलबिलाए मौलाना रजा हुसैन ने बहुत सी आपत्तिजनक बातें कही। हालांकि मौलाना रजा हुसैन, मीसम अपराधी और मौलाना जवाद ने वफ़ की जो मलाई खाई है शायद किसी ने नहीं खाई। इसके बावजूद उन्होंने क्या क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। खाली ठेका क्या हम ही लोगों ने ले रखा है? लिफाफा लेने का ठेका तो सबने ले लिया है, डंडे खाने का ठेका हमने ले लिया है। लिफाफे क्या ले रहे हो? क्या है गैरत आपकी कौम की? और कर रहे कहाँ है गैरत आपकी? और कर रहे हैं, अंदाजा लगाइए, गौर कीजिए, अंदाजा लगाइए। उन्हीं ने इसको भी टेस्ट कर लिया, उन्हीं ने अब ये टेस्ट किया कि जो आवाज उठाता है उसके ऊपर कितने ये लोग खड़े होते हैं, इसको भी टेस्ट करके देख लो। सही है, ये बाकायदा साजिश है, ये प्लानिंग है, इसलिए आयत मिल्लत पर यह हमला, पूरी कौम पर हमला है, दीन पर हमला है। इसलिए आप पूरी तरीके से बेदार हो जाइए, खड़े हो जाइए। सही है, हम साथ उसी का देंगे कि जो हर वक्त हर मसले के अंदर शेर बन के दौड़ता रहा। हम जनाब से कहेंगे कि आप चलिए, हम और आप ईरान चलते हैं, और चलने के बाद साल 2 साल वहां रहते हैं। देखें अगर किसी कौम के शेर में जुर्रत हो तो सामने आए, कौम के मसाइल को हल करने के लिए आए और करें। देखिए, कौम से जाकर, पुलिस से टकराकर, डीएम से टकराकर, आंखों में आंखें डालकर बोलना और होता है, ड्राइंग रूम में बुला के चाय पिलाना, हाथ मिलाना और होता है। पहचानिए कि कौन डीएम के मुंह पर खड़ा है, कौन कह रहा है तेरे बाप की ये मिल गया था जो बांट रहा है। हालांकि मौलाना रजा हुसैन को मौलाना जवाद से पूछना चाहिए था कि उन्होंने डीएम और दूसरे अधिकारियों से बदतमीजी करके क्या हासिल किया। रसूलुल्लाह ने सबसे ज़्यादा अखलाक पर जोर दिया है, लेकिन रजा हुसैन ने बदतमीज़ मौलाना जवाद की बदतमीजी का समर्थन करते हुए क्या कहा, सुने। कि कौन डीएम के मुंह पर खड़ा है, कौन कह रहा है तेरे बाप की ये मिल गया था जो बांट रहा है। कौम के किसी आलिम ने ये जुर्रत मुझे दिखाए, कह के दिखाए, अरे घर के शेर हो, कौम के भेड़ हो। जी हाँ, सुना आपने, बदतमीज रजा हुसैन किस तरह डीएम की खिल्ली उड़ा रहा है और मौलाना जवाद को झाड़ पर बिठाकर उन्हें मरवाने की कोशिश कर रहा है। रजा हुसैन की बात अपराधी छवि के मीसम अपराधी को भी अच्छी लगी और उसने भी डीएम की खिल्ली उड़ाई और मौलाना जवाद की चापलूसी की।
सुने। जो यहाँ पर मोमिनीन के दिल में बात थी वो रजा हुसैन साहब के जबान पर आई। क्या कहने बिल्कुल यही दिलों में यही बात थी कि कोई सामने आने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही में हिम्मत थी जो डीएम से कह सकता था कि तुम्हारे बाप की जगह जलसे में नहीं शामिल होने वाले उलमा की मुखालफत करते हुए मौलाना जवाद ने क्या कहा, सुने उनकी ज़बानी। वे बहुत ही ज्यादा बेगैरत है, लोग इसके ऊपर कोई असर नहीं होता, बल्कि इन्हीं के लिए शेर कहा गया है कि 100 जूतों से कब रुत गए आली नहीं होता, इज्जत वो खजाना है कि खाली नहीं होता। कि वो पुराने पापी न पहले साथ थे, वो पुराने पापी न पहले साथ न आज साथ हैं न वो कभी साथ आएंगे, क्योंकि उनको डीएम से फायदा है, उनको खौफ से कोई फायदा नहीं। उनको फायदा कमिश्नर से है, उनको फायदा डीएम से, उनको फायदा पुलिस से, उनको फायदा हुकूमत से है। कर्मचारियों को क्या दे देंगी? लिहाजा इनका बाइकाट जरूरी है, इनका बाइकाट लाजमी है। हुसैनाबाद के सिलसिले में हमें कामयाबी मिली है। और आप याद रखिए कि ये जो यूट्यूबर ये सब इस तरह के लोग हैं, इनको पैसे मिलते हैं और इसी वजह, और आप कैसी कौम है जिसको अंदाजा नहीं हो रहा है कि वही यूट्यूबर जब किसी की बुराई करता है 2 दिन बाद फिर उसी की अच्छाई करने लगता है, फिर 2 दिन बाद फिर उसकी बुराई करने लगता है, फिर 2 दिन बाद उसकी अच्छाई करने लगता है। तो तब भी समझ में नहीं आ रहा है कि जब हड्डी डाली जाती है तो हिमायत पे भौंकने लगता है, और जब हड्डी खत्म हो जाती है तो बुराइयां करने लगता है, फिर हड्डी डाल दी जाती है, फिर हिमायत बोलने लगता है। उसके बाद भी तुम लोग सुन रहे हो। मौलाना जवाद ने जलसा में जमकर बदतमीजी की। उन्होंने मौलाना यासूब अब्बास के संगठन हैदरी टास्क फोर्स को जनानी फोर्स कहा और तालकटोरा में कब्रों के ऊपर मकान बनाने का विरोध करने वाले मुन्ने आगा और उनके साथियों को यजीद की औलाद बताया। सुने मौलाना जवाद की ज़बानी। दूसरी चीज ये करना चाहता हूँ कि तालकटोरा करबला के सिलसिले में कुछ ऐसे एक जरानी फोड़ बनी हुई है जो सिर्फ शियों के लिए है। न डीएम से हिम्मत हो रही है उनकी, न पुलिस से हिम्मत हो रही है। वहाँ गए भी थे जहाँ सड़क तामीर हो रही थी तो सड़क रुकवाई नहीं थी, बल्कि ये मालूम है कि वहाँ दुकानों की बातचीत हो रही थी कि दुकानें कितनी खुलना चाहिए यहाँ के ऊपर, दुकानों की बातचीत हो रही थी। अरे तुमको रुकवाना ही है। वहाँ चंद तालकटोरे में सिर्फ 6 या 7 बेवा औरतें हैं जिनकी मैंने सिफारिश की है। उसके अलावा जितने प्लाट वहाँ पर मकान बने हैं उससे कोई मेरा लेना देना उससे नहीं है, कोई लेना देना उससे नहीं है जो वहाँ प्लाट बने हुए हैं। अरे चंद बेवाओं को 250 स्क्वायर फीट के प्लाट दिए गए तो वहाँ रोकने पहुंच गए। और जो 3-3 मंजिला बिल्डिंगें बन रही थी उस वक्त कहाँ मर रहे थे तुम? उस वक्त कहाँ मर रहे थे? चूहों के साथ मिल में छुपे हुए थे। तो चंद बेवाओं को 250 स्क्वायर फीट मिला है। और जानते हो उसमें एक औरत कौन है? एक औरत वो है शिया बेवा जो प्लेटफॉर्म पर एक साल से रहती थी। उस औरत को एक हटवा दिया गया है। ये मलूस खबीज उसके लिए पहुंचे हैं। इसे ज्यादा मलूस कोई नहीं है। ये यजीद की औलादे हैं। जो आपने कह दिया गलत नहीं किया, ये नुस्खा यजीद है ये सब के सब। वहां पहुंच गए वो कि हम यहाँ बनने नहीं देंगे, हम इसको बनने नहीं देंगे। 100 मकान बन गए पहले तो भर रहे थे तुम, कहाँ थे तुम उस वक्त? जाओ देखो कि टुंडे कबाबिये का महल बन रहा उसको रुकवाओ। हुसैनाबाद की जमीन पर बन रहा है, रुकवाओ जाके, हिम्मत है। टुंडे कबाबी की पूरी दुकान बन रही, जाकर रुकवाओ उसको, हिम्मत है। तो लजीज गली बन रही, जाओ, हम तो गए थे वहां पर, तुम गए वहां, जाकर रुकवाओ, हिम्मत है। अरे सारी बदमाशी शियों के लिए तुम्हारी, सारी गुंडागर्दी शियों के लिए तुम्हारी। तुमको बनाया गया पुलिस के जरिए से, तुमको एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से बनाया गया है। तुम उनके चमचे हो, बिल्कुल गुलाम हो, जो कहते वही तुम करते हो। मौलाना जवाद ने अंजुमनों को बेवकूफ़ बनाने और लालच देने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि वे पिछले 3 साल से अंजुमनों को जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे। मालूम हो कि अब वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी और दूसरे सदस्यों का
कार्यकाल खत्म हो गया है और वक्फ बोर्ड कोई फैसला नहीं ले सकता। ऐसे में अंजुमनों को वक्फ में जिम्मेदारी देने की बात कहना सरासर झूठ और उन्हें बेवकूफ़ बनाना है। सुने मौलाना जवाद ने किस तरह अंजुमनों को बेवकूफ़ बनाया। जब से वक्फ बोर्ड बना है, हमारे सारे बहरी साहब हैं, उनकी तरफ से भी तजवीज़ आई थी, हमारी भी तजवीज़ थी कि जितने भी बड़े बड़े अल खैर औकाफ हैं वो अंजुमनों के सुपुर्द किए जाएं। ये हमारी डिमांड इब्तिदा से है, शुरू से। और हमारी एशिया यतीम खाने के लिए तकरीबन 6-7 महीने से दरखास्त अंजुमनों की पड़ी हुई है, जिस पर अभी तक कोई फैसला उन्हें नहीं किया। सुना है कि अब शायद कोई उनकी तरफ से ऐलान आया है, ऐलान है कि हम अंजुमनों को देंगे। ये मुतालबा हमारा शुरू से है। अब देखते कितना वो उस पर अमल करते हैं और कितना इस पर अमल होगा हमें नहीं पता है, लेकिन अगर ऐलान आया बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुतालबा हमारा 3 साल से मुतालबा है कि अंजुमनों को दिया जाए, और 6-7 महीने से इसकी यतीम खाने की अंजुमनों की दरखास्त पड़ी हुई है वहाँ पर वक्फ बोर्ड में, लेकिन अभी तक उन्हें कोई फैसला उस पर नहीं किया था। लेकिन अब अगर कोई फैसला ऐसा हुआ है तो बड़ी अच्छी बात है। बहरहाल जलसा में झूठ, मक्कारी, बेईमानी और धोखाधड़ी का बोलबाला रहा। उलमा की जमकर तौहीन की गई और उनका साथ नहीं देने वाले उलमा का बाइकाट करने की बात कही गई। दूसरी ओर अंजुमनों, उलमा और लोगों ने मौलाना जवाद का पूरी तरह बाइकाट किया। लोगों ने वफ़ शाह मर्दा और दूसरे वफ़ का हिसाब किताब मांगा था, पर उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली। इसी तरह शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अली जैदी, जो मौलाना जवाद के दामाद हैं, उनके खिलाफ आंदोलन चलाने की बात नहीं की गई, जहां अरबों का घोटाला हुआ है। इससे साफ है कि मौलाना जवाद वक्फ बोर्ड के करोड़ों के घोटाले में शामिल हैं। जब तक वे वक्फ बोर्ड में हुए घोटालों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक उन्हें ईमानदार नहीं माना जा सकता। लोगों का ये भी कहना है कि उन्हें दिल्ली की शाह मर्दा करबला में हुए करोड़ों के घोटाले का भी हिसाब किताब देना चाहिए, क्योंकि उन घोटालों के लिए सीधे तौर पर मौलाना जवाद को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी और दूसरे उलमा और सरफराज हुसैन ने मौलाना जवाद से साफ साफ लफ्जों में हिसाब किताब पेश करने की मांग की थी, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।